Happy Independence Day in advance to everybody. We are celebrating our Independence Day tomorrow, and it is ironic that we are celebrating while confined to our homes. But it is a larger independence that we are celebrating, and one that a lot of people fight for, a lot of people have fought for in the past, and a lot of people continue to fight for continuously on an ongoing basis. Um, our soldiers, our doctors, our immediate community, people who of a community who um, elevate their position and become everyday heroes for us. So on this special occasion, I think it's great if we can take a minute to remember the great people who fought for our independence. Independence is is very much a human right, but one which depends on other human beings, which is not just which we cannot just get by definition by just being human, by being born. And independence and freedom, these concepts are such that they are truly situational. And if we are free today, then it is a situation in which we are free. It is a battle that has been fought by many and overcome. And so it is something that we achieved. And it is in that sense that we are independent. It is in that sense that we are free today. And the community around us has these people who have given us this opportunity. If we are free to pursue this course today, then it is the efforts of your parents who've done that, of a lot of people who've supported you, the teachers who've taught you. So gaining independence is a process in which a lot of people contribute, and it's great that we can recognize and their contribution and salute them on this wonderful day where we celebrate our independence. It's great that we are holding a lot of events, a lot of activities, and celebrating it, because we must celebrate it, as we must celebrate all good things, and independence and freedom is truly a good thing. So on this wonderful occasion, I wish everybody a very, very happy Independence Day in advance. And I hope that we are all even more independent, even more free every day. Thank you. Thank you, sir. अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुस्मिता बालाजी से रिक्वेस्ट करती हूँ, HOD DME मीडिया स्कूल, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह हम सभी के साथ अपने विचार साझा करें स्वतंत्रता दिवस पर। हमारा देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हमारी आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। तो मेरा आज के दिन के लिए ये कहना है युवा पीढ़ी को कि इस संकल्प को ले कि अपने देश के लिए जो भी वो प्रयास कर सकते हैं उसको ऊंचा उठाने के लिए वो करें, और इस स्वतंत्रता को कायम रखने में जो भी हो सकता है वो करें, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हम लोग ऐसे ही नहीं मना रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, और ये जो वर्तमान समय चल रहा है अभी, इसमें कितने लोग अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, और इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, सभी लोग अपनी जान जोखिम में डाल के सारे प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें। और जितने भी लोग हैं वो घरों में रहकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो जैसा कि अमन सर ने भी कहा कि ये अगले साल हम लोग बहुत खुले आसमान के नीचे स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ और ये आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने की अनुज्ञा करती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद मैम। देश 73 साल पहले अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, पर अभी वो कोविड महामारी की गिरफ्त में है। जिस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जी जान लगा के देश आजाद करा लिया, उसी तरह इस मुश्किल की घड़ी में हमारे कोविड वॉरियर्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश को बचाने में डटे हुए हैं। ऐसे ही ये कोविड वॉरियर्स का आज हम सम्मान करना चाहते हैं। हमारे साथ कोविड सर्वाइवर्स भी उपस्थित हैं। सबसे पहले आज हमारे बीच मौजूद है कोविड वॉरियर श्री किरण वर्मा। श्री किरण वर्मा ने कोविड-19 के दौरान राहत कार्य करना शुरू किया। उन्होंने यह राहत काम इस मंशा से किया कि कोई भी आपदा की घड़ी में भूखा ना सोए। अब तक उन्होंने दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग
2400 से ज्यादा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। दिल्ली नोएडा में 800 से ज्यादा ट्रांसजेंडर और यौन कर्मियों को राशन किट दिए। गरीब परिवारों को भी 15 दिनों के लिए 1100 से ज्यादा राशन किट की व्यवस्था की उन्होंने कोविड से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1500 प्लस फेस मास्क और हाथ के दस्ताने भी वितरित किए। स्वच्छता की इस समय बहुत आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिल्ली के 5 आश्रय घरों में डिटॉल और फिनाइल के पैक वितरित किए। उन्होंने एक अनाथालय में रहने वाली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन के 500 पैक भी दिए। उनकी फाउंडेशन का नाम चेंज विद वन फाउंडेशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच उपस्थित होने के लिए किरण सर, और हम आपकी दानवीरता को सलाम करते हैं। मैं अब आपसे आग्रह करती हूँ कि हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं आप ही की तरह एक सामाजिक और नॉर्मल इंसान था कुछ समय पहले था। लेकिन हुआ क्या कि जब पता चला कि बहुत सारे लोगों को कोविड के दौरान, इनफैक्ट हम लोगों ने कोविड से 2 दिन, जब लॉकडाउन से 2 दिन पहले हमने शुरू किया था 23 को ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें पता चला कि कोविड लॉकडाउन से पहले ही कुछ एक सिक्योरिटी गार्ड थे, सफाई कर्मचारी थे, जिनको खाने के लिए, राशन के लिए पैसे नहीं थे। और क्योंकि वो एंड ऑफ मंथ था तो बहुत सारा सेक्शन ऐसा था लोगों का जिनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो अपना भरपेट खाना भी खा पाए। तो 23 तारीख को हमारी सेक्टर में, नोएडा का एक छोटा सा सेक्टर है, उसी के अंदर एक सेक्शन जो है वो कुछ झुग्गी बस्तियों का या गरीब तबके के लोगों का है। तो जब पता चला कि वहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है राशन के लिए और लोग ब्लैक कर रहे हैं राशन, तो मुझे लगा कि वहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए। कुछ 70 के करीब मजदूर थे जिनकी मदद कर रहे हम गए, और शायद ये आज़ादी है कि जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन के अंदर भी एक फ्री मूवमेंट मिली। अगर हम अभी भी गुलाम होते अंग्रेजों के अंदर, तो शायद ये मूवमेंट कभी नहीं होती, कभी भी हम इतने बड़े स्केल पे लोगों का रेस्क्यू नहीं कर पाते या लोगों को बचा नहीं पाते, उनकी मदद नहीं कर पाते। तो थैंक्स टू आर कॉन्स्टिट्यूशन के जिसने हमें ये फ्रीडम दी कि हम लोग इतने बुरे वक्त में भी सब लोग इकट्ठा होके और काम किया। हमने लगभग 60 दिनों से भी ज़्यादा 2400 लोगों को रेगुलर खाना प्रोवाइड किया। ये इंश्योर किया कि उस पूरी बस्ती में कोई भी भूखा न सोए। और तकरीबन 1800 के करीब, क्योंकि ये नंबर्स मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो नंबर्स हैं ये अपडेट हो चुके हैं। 2-3 महीने पुराने नंबर्स मैंने शायद आपको भेजे। दिल्ली में हमें पता चला जीबी रोड के अंदर जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पर बहुत सारी दीदियाँ हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है इसके अंदर लोग कम्युनिटी, मतलब they don't wanted to visit those places because of the fear of getting affected। तो लिए हमने इंश्योर किया कि वहाँ दीदियों को राशन मिले, और हमने वहाँ जो टोटल 760 के करीब दीदियाँ हैं उन सभी दीदियों को राशन प्रोवाइड किया 2 महीने तक। फिर उसके बाद हमें पता चला शेल्टर होम है निज़ामुद्दीन में, वहाँ पर शेल्टर होम के थ्रू हमें और दिल्ली के शेल्टर होम्स के बारे में पता चला, जहाँ हमने सैनिटाइज़र और मास्क और साबुन ये सब प्रोवाइड किया। अभी सिचुएशन बेटर है, लेकिन अभी भी हम लगे हुए हैं क्योंकि जो कोरोना पेशेंट्स हैं जो हु कैन नॉट अफोर्ड हाई मेडिकल फैसिलिटी, और या जिनको गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, उन लोगों को हम लोग घर पे ही होम क्वारंटाइन का सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम उनको ऑक्सीजन सिलेंडर और नेबुलाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पूरा एक किट उनको प्रोवाइड करते हैं एट ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट, ताकि वो लोग घर में ही अपने आप को मेडिकली ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और अभी आने वाले 6-7 महीनों में भी ख़त्म नहीं होने वाली, चाहे अगले कुछ दिनों में दवाई आ जाए तब भी, क्योंकि हम सबकी इंडिया के अंदर एक आदत है कि हम लोग
लोगों से मिलने को नहीं रोक सकते, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करने में नहीं रोक सकते। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आज़ादी हमारा हक ज़रूर है, लेकिन इस आज़ादी को प्लीज़ शर्मिंदा ना करें। बाहर निकल के कोरोना से जंग अभी जारी है और लड़ते रहेंगे। मैं खुद कोरोना रिकवर्ड पेशेंट हूँ, तो मुझे खुद पता है कि इट्स नॉट दैट इजी टू गेट रिकवरी फ्रॉम दिस डिसीज। आप देख सकते हैं कि मेरे लिए मेरा बेटा मेरा बेटा भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, जिसको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। तो मेरी वाइफ और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब भी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी देखते हैं और परिवार को भी देखते हैं और समाज को भी देखते हैं। मेरी वाइफ जॉब करती है, मैं समाज सेवा करता हूँ, अपने बेटे को संभालता हूँ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज़ादी का सही उपयोग करें और सिर्फ मरने के लिए ना जिए, जीने के लिए भी जिए, ताकि हम आज़ादी को ठीक से एंजॉय कर सकें। जय हिंद, जय भारत। अब बढ़ते हैं हम कोविड सर्वाइवर्स की ओर। ये वो सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने एक जंग लड़ी है, जिंदगी की जंग। डीएमई के छात्र यश मखीजा 8 दिनों से एनएससी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। अब वे कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज लेने वाले हैं। यश पढ़ाई में रुचि रखते हैं और डीएमई के एक एक्टिव छात्रों में से एक है। डिजिटल मार्केटिंग वे सीख रहे हैं और वे उसी में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं यश से उनका अनुभव उन्हीं के द्वारा। Hello everyone. My name is Yash Makhija and I'm 19 years old and I'm from Panipat, and I got corona positive on 4th of August, and it's been 9 days that I'm here in hospital. And before me, my father got COVID positive, and एक वो मोमेंट था जब पापा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सब पैनिक कर गए कि क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा सब। उसके बाद हमने सोचा कि सबका टेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, तो सबका टेस्ट करवाया एंड आफ्टर दैट आई गॉट कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद एक सिचुएशन थी, माइंड में पैनिक रहता है एंड सब कुछ। तो मेरे फादर को सिम्टम्स थे, उनको फीवर था, उनको कफ था, बट थैंक गॉड मुझे कोई सिम्टम नहीं था, मैं एसिम्प्टोमेटिक था एंड मैं अभी भी एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मुझे अभी भी कोई सिम्टम नहीं है, बट इट्स जस्ट टैग कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हो, उसे को टैग लग गया एंड आई एम कम्प्लीटली फिट नाउ एंड आई एम वेटिंग कि 2 या 3 दिन बाद, डे और 2, आई विल बी डिस्चार्जिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। एंड मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं अनलॉक स्टार्ट हुआ तो अनलॉक स्टार्ट होने पर वी वर लाइक फ्रेंड से मिलना, हैंग आउट करना, वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। और जैसा कि अभी किरण सर ने कहा कि हमको इस फ्रीडम को वाइजली यूज करना चाहिए, ये समझ मुझे उस टाइम पर नहीं थी एंड ऐसा लगता था माइंड में कि हमको कैसे हो जाएगा, हमको ही क्यों होगा, चलो चलते हैं घूमने, एंड बाहर निकल जाता था मैं एंड ये सब। एंड आई डोंट नो कहाँ से आया, शायद मेरे फादर के थ्रू आया मुझे भी। और अब लेकिन जब हो गया खुद को, तब ये समझ आई कि घर पे रहना बेटर है एंड ध्यान से रहना बेटर है। एंड एक और बात कहना चाहूँगा कि एक हाइप है जो सोसाइटी में कि कोविड 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 ऐसा, कोविड वैसा, तो वो हाइप थोड़ी सी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मतलब कोरोना फ्लू की तरह आता है और चला भी जाता है। मैंने रिकवर कर लिया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर और लोग भी हैं, वो भी रिकवर कर रहे हैं, सब रिकवर कर रहे हैं, मेरे फादर डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो भी रिकवर कर गए हैं। प्रॉब्लम आती है जो कोई एज्ड है, कोई सीनियर सिटीजन है, सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टे इंडोर्स, ईट गुड एंड स्टे हेल्दी, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। एंड मैं किरण वर्मा सर ने जैसे कहा, मैं उनको रियली रिस्पेक्ट एंड ऑनर करता हूँ कि वो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। एंड ऑल्सो जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर लड़ रहे हैं एंड
यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो हमको सर्व कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और नेशन को सर्व कर रहे हैं. सो kudos to them and to all of them, just stay safe and stay indoor and good luck and happy Independence Day in advance. Thank you. धन्यवाद यश, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं. हमारी अगली कोविड-19 सर्वाइवर बीजेएमसी थर्ड ईयर की छात्रा प्रिया यादव हैं. उनका लक्ष्य है ग्राफिक डिजाइनर बनना और वो अभी अडोबी सॉफ्टवेयर सीख रही हैं. प्रिया 26 मई को अपने परिवार के साथ कोविड पॉजिटिव हुई और अगले 10 दिनों तक वो दिव्य ज्योति अस्पताल मोदी नगर में क्वारंटीन थी. मैं प्रिया से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें. Hello everyone, myself Priya Yadav. I am thankful for the DME that they give me this opportunity to share my experience. So, despite the fact that I am here to share my experience, my overall experience was very terrible. At first, my father was suffering from typhoid and pneumonia, and then later we have to admit him in Fortis. And when we went there, when we go there. Everyone was confused about the situation, that how people are getting admitted in the hospitals, whether according to the city or the state. So later my father was admitted there, and after a few days my dad was found positive, COVID positive. I mean, whole family ने test कराया. I mean, and me and my mom get positive. I'm really sorry. मैं और मेरी मम्मा को पॉजिटिव आया था हमारा रिपोर्ट, एंड मेरे भैया का रिपोर्ट नेगेटिव आया था. तो इसके बाद हम दोनों को क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ा, एंड वहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा, I mean, वहाँ पे कुछ भी प्रॉपरली नहीं था. एक तो पीपल भी इनफ नहीं थे, ऊपर से कुछ क्लीनलीनेस नहीं थी वहाँ पे. मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है. एंड फिर उसके बाद मेरे फादर आईसीयू में थे उस टाइम, एंड लेटर आफ्टर 14 days मेरे फादर को डिस्चार्ज मिला वहाँ से, एंड मैं घर पे 10 दिन के बाद आई थी. तो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली एंड जो सोसाइटी मेंबर्स है, तो उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. दे ऑल वर वरीड अबाउट us, they are motivating us, always giving us positive vibes, and financially भी help की. तो यार मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प की. धन्यवाद प्रिया, आपने बहुत डट के अपने परिवार के साथ इसका सामना किया. मैं अब प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत स्वामी, डायरेक्टर डीएमई से विनती करती हूँ कि वो हम सभी के साथ अब चंद शब्द साझा करें. Sir, you can't be heard. Is it okay, Ritvik? Yes, sir. Okay, so it's again a pleasure interacting with the students and faculty of DME Media School. And yes, your programs are always my favorite. So when we talk about independence, yes, lot many things to talk about independence. And today, both these things are very closely related. One is the stories about COVID, and second is the Independence Day. Well, I congratulate you all on this eve of Independence Day. And when we talk about COVID, it's very emotional listening to the stories. I had a word with Yash Makhija a few days before, because he stays in Panipat, and I live quite close to him. So yes, students, I really appreciate your bravery, and I wish this disease will go away soon. And I also wish that the post-COVID world will be better than the pre-COVID world. This can be in many ways if this world
learns so many lessons. And I think one lesson is the most important which the world should learn. And that lesson is that for many things for which we go hundreds of kilometers can be done sitting right at home. For instance, like online banking, Paytm, all those things, we were so skeptical about these things. Not only that, when we talk about work from home, a concept. So if this concept comes out in a big way, and all the multinationals, IT companies, they follow this concept in a big way, I can tell you participants that the post-COVID world will not be having traffic jams like the pre-COVID world was having. So yes, there's always a light at the end of the tunnel, and now the time has come when we are able to see that light at the end of the tunnel. Now, on the one hand, the cases are rising, but on the other hand, vaccines, the news of vaccine is coming each day, along with controversies, of course. But then this vaccine is going to be there, and the post-COVID world is going to be better than the pre-COVID world. With that hope, again, I wish you all a very, very happy Independence Day. Thank you. धन्यवाद सर। मैं अब प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन डीएमई मीडिया स्कूल से निवेदन करती हूँ कि वह हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करें। Thank you, Shinjini. We are meeting on the eve of the Independence Day of India, and every year we celebrate it on 15th of August. So assuming today, 15th of August, we are celebrating it, since tomorrow is a weekend. And obviously this is a matter of joy. We attained freedom after a very long struggle and after the sacrifices of so many people at different levels. So it's a very hard earned freedom that we got, and now it's 74 years. And on this day, obviously, this is a day of remembrance to all those people who laid their life for the freedom of the country. But the greatest homage to all those people who did this for us, that we do something significant, something substantial for the country. और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश के लिए जो भी हमसे हो सकता है, whichever capacity we can work, whichever capacity we work, we do that all, and with a positive spirit, with all positive vibes, and with all social orientation, whatever good deeds we can involve ourselves. There is no ready-made thing which can be prescribed by anybody for anybody, but then it is something which we have to abide by ourselves, that we have to, in our daily lives, in our day-to-day dealings, in our professional life, we must try to do this all, which helps the society to grow, which helps us, all our brothers and sisters in society to grow. And particularly in a challenging time, this responsibility increases manifold, and the time or the phase with which we have been passing through for the last 5 months, this has proved, because we were listening to one of the this COVID warriors. So this is a time which proves that each one of us owe to the society. So whichever capacity we can contribute to society, we should not shy away with. We should always be ready to come forward. And more responsibility obviously is on the young people, on the young shoulders, because they have to take this country forward. So I believe that with this spirit, we will work with more vigor, with more zeal to the growth of the country, and we will make all collaborative efforts, joint efforts to lead the country ahead. Thank you all. धन्यवाद सर। तो कोरोना योद्धा के जज्बे से रूबरू होने के बाद क्यों ना हम माहौल को थोड़ा रंगीन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिताओं का ये सिलसिला। हमारे कॉलेज के छात्रों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी देशभक्ति को दर्शाया है। तो आइए शुरू करते हैं।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भगवान और खुदा आपस में बात कर रहे थे। मंदिर और मस्जिद के बीच चौराहे पर मुलाकात कर रहे थे कि हाथ जोड़े हुए हो या दुआ में उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मंत्र पढ़ता है तो कोई नमाज पढ़ता है। इंसान को क्यों नहीं आती शर्म है जब वो बंदूक दिखाकर पूछता है कि क्या तेरा धर्म है। उस बंदूक से निकली गोली ना ईद देखती है ना होली, सड़क पे बस सजती है बेगुनाह खून की रंगोली। भगवान और खुदा आपस में बात कर रहे थे। मंदिर और मस्जिद के बीच चौराहे पे मुलाकात कर रहे थे। सबको हम दोनों ने इसी मिट्टी से बनाया। कोई जन्मा अम्मी की कोख से तो कोई माँ की गोद में रोता आया। कौन है वो कमबख्त जिसने नफरत का पाठ पढ़ाया। किसी अकबर को कहा माँ को मार और अमर के हाथों अम्मी को मरवाया। ममता का गला घोटने वाले बेवकूफों को कोई समझाओ। मजहब की इस जंग में तुमने इंसानियत को दफनाया। हमारी अगली प्रतियोगी है ऋतिका तेंदुलकर।
द्वारा हम संसार के सुख, दुख, आनंद और कलेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी प्रतियोगिता पोएट्री रेसिटेशन की ओर। सारे प्रतिभागी खुद लिखी कविताएं प्रस्तुत करेंगे और उन्हें जज करेंगी प्रोफेसर डॉक्टर सुष्मिता बाला और असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णा पांडे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रतिभागी शुभम मंडल की ओर। हेलो मैम, नमस्कार। मेरा सादर नमस्कार और प्यार आप सभी को। मेरा नाम शुभम मंडल है और मैं बीजेएमसी थर्ड ईयर से हूँ और मेरी कविता का नाम है मैं कैसा इंसान हूँ। तो ये शुरू कुछ इस तरह से होता है। सड़क पे चलते चलते जुबां पे रखी बात जब खत्म ही हो आई, तब मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आई कि मैं कैसा इंसान हूँ भाई। मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या राम नाम जपता हूँ। बाबरी का किबला मेरा, यीशु के गिरजे मेरे। उर्दू का एक अखबार है मुझ में, किया तो गंगा स्नान भी मैंने। मैं ज्ञान भी तो देता हूँ, मैं सिगरेट भी तो पीता हूँ, मैं बाकी 100 से मिलता हूँ, मैं बाकी 100 से लड़ पड़ता हूँ। लोगों के मन का एक खोट मैं, अच्छाई का एक स्रोत भी मैं। मैंने कुरान भी पढ़ी है, इंजिल पर भरोसा भी कायम रखा है। लाखों नाम है मेरे, लाखों को मैंने जाना, लाखों लोग मुझ में बसे, लाखों लोगों में मैं बसा। दुनिया के रग रग में हूँ मैं, आखिर मैं तो बस चंद शब्दों का इंसान हूँ मैं। धन्यवाद। धन्यवाद शुभम, बहुत ही अच्छी कविता थी आपकी। आइए अब हम अपने अगले प्रतिभागी आयुषी वर्मा की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है आयुषी वर्मा। मैं बीजेएमसी थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं यहाँ मौजूदा सभी शिक्षक गण, विद्यार्थी और खासम खास कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने कठिन समय में आम आदमी की सेवा करी है। दोस्तों, मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके सामने मेरी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तिरंगा। वो शान है हमारी, रंगमंच है हमारा, जिसके आगे सिर झुके वो है तिरंगा हमारा। 3 रंगों से बना, साहस, शांति और हरियाली का प्रतीक, जो भर दे हर मन में एक नई सीढ़ी सफलता की। आज वो दिवस फिर से है आया, जिसके कारण ही भारत आजाद हो पाया। ली थी सोने की चिड़िया, उसको फिर से है पाया। कई बलिदान देकर तब ये 74वां स्वतंत्रता दिवस पाया। माना गांधी जी ने दिया बलिदान था, मगर उन पत्रकारों को मत भूलो जिन्होंने लिख लिख बढ़ाया साहस और कदम हमारा। याद रहे वो हर व्यक्ति जिसने खून बहाया था, पूर्वजों से पूछो उन्होंने कैसे वो वक्त बिताया था। लुट लुट कर जीते थे हर दिन, उन गोरों ने था कत्ल किया। जब शांति आई देश में, हर भगत सिंह था खड़ा हुआ। भूलना ना ए दोस्तों उस मिट्टी का एहसान, जिस पर सजते हैं फूल जब कफन बने कई इंसान। आज खुशी का दिन आया, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। धन्यवाद। धन्यवाद आयुषी, इतनी खूबसूरत कविता हम सभी के साथ साझा करने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रतिभागी उदित कुमार की ओर।
नमस्कार, मैं उदित कुमार, थर्ड ईयर सेक्शन बी का बीजेएमसी का छात्र हूँ। मैंने एक कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है कि भारत के नवयुवक। मैं प्रस्तुत करता हूँ। ऐ भारत के नौजवान तो लिख, ऐ भारत के नौजवान तो लिख मुड़ वर्जनाओं को तोड़कर, तो लिख भावनाओं को हिंडोर कर, कलम की ताकत को तू पहचान, मिलेगी तुझे भी एक पहचान। उकेर तू शब्दों को जैसे, उकेर तू शब्दों को ऐसे, हृदय की संवेदना जाग जाए तेरे। धन्यवाद। जैसे धन्यवाद उदित। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रतिभागी सौम्या भास्कर की ओर। Soumya is not there, but we have one more participant in the list. She is there. उसको unmute कर दो. Chetna Garg. We have Soumya with us. Please unmute her. Soumya Gupta. Soumya Bhaskar. Yeah. Thank you. नमस्कार सभी को। मैं 5th C बीजेएमसी की छात्रा हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है शहीद की गाथा। आज फिर से ये बात मुझे दोहरानी है, 73 साल पहले की कुर्बानी याद दिलानी है। वीर गति को प्राप्त हुए वीर की ये वाणी है, मुझ जैसे हर देशभक्त के बलिदान की ये कहानी है। मैं डटा रहा, मैं जगा रहा, धूप और बरसात से मैं दिन भर लड़ता रहा। कितने ही तूफान आए, कितनी ठंडी रातें आई, मगर मेरे इस जोश को कोई मुश्किल झुका न पाई। मैं डटा रहा, मैं जगा रहा, सरहद पर बुलंदी से सीना ताने खड़ा रहा। गोलियों की बौछार ने कई बार छलनी मुझको किया है, मगर दुश्मनों की हार ने मरहम उनको दिया है। मैं डटा रहा, मैं जगा रहा, जिंदगी के उत्सव भूल आजादी की जंग में खड़ा रहा। अपनी माटी के मान को और तिरंगे की शान लिए सब सदा अपनी भारत माता का वीर सपूत में बना रहा। वीर गति को प्राप्त हुए वीर की ये वाणी है, मुझ जैसे हर देशभक्त के बलिदान की ये कहानी। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या, इतनी खूबसूरत कविता हम सभी के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट है चेतना गर्ग, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपनी कविता हमारे साथ प्रस्तुत करें। चेतना, आप हैं वहां पे? किसी कारणवश लग रहा है चेतना गर्ग जी हमें सुन नहीं पा रही हैं, तो हम अगले प्रतियोगिता की ओर बढ़ते हैं। अदिति, प्लीज टेक ओवर। आज की अगली प्रतियोगिता है जस्ट अ मिनट। दिए गए विषय पर 1 मिनट तक बिना अटके बिना रुके अपने विचारों को व्यक्त करना है। इस प्रतियोगिता के जजेस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित कुमार वत्स और असिस्टेंट प्रोफेसर टीना मोहरा, डीएमई मीडिया स्कूल। तो आज की पहली प्रतियोगी है रिमझिम दुबे। Unmute her.
Rimjam, you're unmuted. Rimjam, are you there? Yes, she's there, but Can we move further if she's not there? नहीं, she's there. Actually, उसकी voice नहीं आ रही. She's there. Rimjam? उनकी voice नहीं आ रही. Rimjam, speak up something. Do you have a headphone or something to connect? अब मेरी voice आ रही है क्या? Yes, you are audible. 1 minute, 1 minute. Yeah. You are audible now. Okay, then give me the topic, please. Give me the topic, please. Hello. Is my voice audible, Shinjini? Yes, you're audible. I request Mohit sir, Peenam Bhora ma'am to kindly give Rimjam a topic to speak on. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Rimjam. Good afternoon, Shinjini and Aditi. Rimjam, your topic for just a minute. Am I audible, Rimjam? Yes, sir. Yes, you are audible. Your topic for just a minute is democracy. Okay. So, sir, should I start? Yes, please. नमस्कार दोस्तों, मैं रिमझिम आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज जैसा कि आपने सुना कि मेरा विषय है लोकतंत्र। बहुत वक्त से ये मुद्दा ना ही किसी के खिलाफत का था, ना ही किसी के हिफाजत का था, पर आपको ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र का सही मतलब क्या है। अगर आप घर बैठे बैठे अपने घर बैठे बैठे अगर आप बाहर निकलकर वोट करने नहीं जाते तो आप समझ लीजिए कि आप भी लोकतंत्र की हत्या के उतने ही गुनाहगार हैं। आप बैठ के सीधा बोल देते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, हमारे पास राइट्स है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया पे चंद सवाल उठा लेते हैं, पर आपको खुद भी समझना चाहिए कि आपके क्या खुद के राइट्स हैं। लोकतंत्र सिर्फ 1 या 2 इंसान तक सीमित नहीं है। हमारे देश में आज 135 करोड़ की आबादी है। हम सब लोकतांत्रिक देश के एक हिस्सा हैं। पर जहां आप बात करते हैं, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मीडिया लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वहां पे आपको खुद भी समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। आप खुद अपने राइट्स पूरा नहीं करते, आप खुद बाहर जाके वोट नहीं करते, आप खुद गलत सही का आपको पता नहीं, आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, आप उसके बारे में नहीं जानते, आप अपने राइट्स यूटिलाइज नहीं करते और आप कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश के हिस्सा हैं। हाँ, हम लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं, पर हमारा कर्तव्य ये भी तो बनता है कि उस लोकतांत्रिक देश में जितने भी राइट्स है उन्हें यूटिलाइज करना। क्या सिर्फ यही है कि हम घर बैठे बैठे बोल देंगे कि हाँ बीजेपी की सरकार आ जानी चाहिए, इसकी सरकार गिर जानी चाहिए?
पर यह भी समझना जरूरी है कि आपका ये जो मत है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम अप। धन्यवाद। धन्यवाद रिमझिम। हमारे अगले प्रतियोगी हैं क्षितिज शर्मा। Kshitij, are you there? क्षितिज, I'm unable to find Kshitij in the list. Can we move further? हमारे अगले प्रतियोगी हैं श्वेता पाल। Shweta is not there, I think so. ओके, सिद्धार्थ कुकरेजा। Okay. Good afternoon, one and all. जी sir, topic. गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ, आपका टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो सर मेरा मानना ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये अभी जो करंट एजुकेशन पॉलिसी थी उससे बहुत बेटर है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको एक बेसिक नॉलेज दी जा रही है। 6th क्लास के बाद आपको बोल दिया जा रहा है कि आप अगर किसी स्किल में इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें ट्रेंड हो जाओ, प्लस आपकी बेसिक एजुकेशन जो आप साथ में कंटिन्यू करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि वोकेशनल कोर्सेज लाइक जो ट्रेनिंग कोर्सेज है, जो प्रोफेशनल जॉब्स के कोर्सेज हैं, वो प्रॉपरली लोगों को ट्रेन किया जाएगा इन अ पैटर्न। तो वो एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। और जो लोग हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, अभी क्या है सर, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक हाथी, एक घोड़ा, एक कुत्ता और एक ऊंट, अगर आप उनको एक रेस में दौड़ाओगे तो शायद सब नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि अगर वो अपनी अपनी ही रेस में जाएं और वहां पे compete करें तो शायद वो बेटर कर पाएंगे। तो ये मेरे लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है। धन्यवाद सिद्धार्थ। हमारे अगले प्रतिभागी हैं रोहित गुप्ता। अनम्यूट हिम। नमस्कार, मैं रोहित गुप्ता गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मुझे विषय दें। नमस्कार रोहित, और आपका जो विषय है आज के जस्ट अ मिनट के लिए वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट संविधान के संविधान में हमें एक बहुत अद्भुत चीज दी है जिसका जो हम वर्णन करना चाहेंगे वो है फंडामेंटल राइट। इसको हम हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार उतना ही जरूरी है जितने जरूरी आज हमारे लिए सांस लेना, खाना खाना और पानी पीने के बराबर। फर्क आज ये इतना है कि वह हमारे शरीर से जुड़े हुए नहीं है, परंतु उनकी भागीदारी उतनी ही है जितनी हमारे जीवन में खान पान की है। मौलिक अधिकार एक आदमी की स्वतंत्रता बताते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकार हैं, आप उससे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी आजादी मांग सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, आप सिस्टम से सवाल कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार वैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से 14 से 34-35 तक दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, कल्चरल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और मौलिक अधिकार जो है वो हमारे जीवन में एक बदलाव के रूप में दिया गया है। संविधान निर्माताओं ने पूरे तौर पे सोच समझ के ये अधिकार हमें दिए हैं ताकि हम आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार से, समाज से और इस व्यवस्था से तालमेल बैठा सके। धन्यवाद। धन्यवाद रोहित। इस प्रतियोगिता के आखिरी प्रतियोगी हैं उदित कुमार।
अनम्यूट हिम। नमस्कार सर, गणतंत्र दिवस की मैं सबको आवाज नहीं दे रही क्या? हेलो उदित बोलिए। हेलो That unmute him. हेलो, कैन आई हियर यू? सॉरी, कैन आवाज ही नहीं जा रहा है यार। नहीं, आवाज आपकी आ रही है। हेलो कैन यू हियर मी? हेलो, यस वी कैन हियर यू। यस सर। सर मेरी टॉपिक, हाँ आपका टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। ओके सर, तो स्टार्ट करूं मैं? सर मेरा टॉपिक साइबर सिक्योरिटी है। मैं साइबर सिक्योरिटी पे कुछ ऐसी चीजों को जरूर बताना चाहूंगा कि लोग इसका फायदा भी उठाते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। साइबर सिक्योरिटी हमें इन चीजों के लिए मिली है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो, हमारी मौलिक अधिकार और हमारी पर्सनल चीजें, डाटा कोई निकालता है, तो एज अ इथिकल हैकर हमें देखना है कि वो कौन बंदा था, कौन इंसान था जो हमारी पर्सनल डाटा चीजों को ले गया और उसे हम अपने आप को सिक्योर कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं लोग साइबर सिक्योरिटी को भी गलत तरीके से अपने निजी फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं साइबर की बात करूं तो आज पूरी दुनिया, ना कि सिर्फ इंडिया, पूरी डिजिटलाइज हो चुकी है। हम हर एक पल किसी ना किसी टेक्नोलॉजी से जुटे हुए हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हम किस चीज से जुटे हुए हैं और वहां पे एक टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए जिस तरह फंडामेंटल्स है, इसी तरह साइबर सिक्योरिटी भी होनी जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे साथ कोई इंसान गलत करे तो मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता हूँ, लेकिन अगर एक सर्वर, एक आईपी एड्रेस मेरे साथ गलत कुछ करे तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? अब स्वाभाविक सी बात है कि मैं साइबर सेल ऑफिसर के पास जाऊंगा कि हाँ जी मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझे मदद चाहिए। जैसे जैसे देश बढ़ते जा रही है, ऐसे ऐसे चीजें बदलती जा रही हैं। अगर मैं कुछ सालों पहले की बात करूं, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद उदित। अब मैं चाहूंगी शिंजिनी को कि वो आगे की प्रतियोगिता का प्रारंभ करें। धन्यवाद अदिति। संगीत वह भाव है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को सुरों में पिरोकर व्यक्त करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अंतिम प्रतियोगिता गायकी की ओर। इस प्रतियोगिता को जज करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर मनमीत कौर और असिस्टेंट प्रोफेसर ऋतिक घोष। हमारे पहले प्रतिभागी हैं अनिरुद्ध दास। जब देश में थी दीवारी, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद करो कुर्बानी। हिमालय खतरे जब वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Hello everyone, my name is Anirudh Das and I wish you all a very happy Independence Day. This was a small tribute by
हमारे अगले प्रतिभागी हैं नितिन भारद्वाज। रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, है नहीं रहना दूजा बनके। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन से, है नहीं रहना दूजा बनके। अपने रंग में मुझको रंग दे, मेरी बेदम में मुझको रंग दे, सौंदे सौंदे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। धन्यवाद नितिन। आइए देखते हैं डीएमई मीडिया स्कूल के छात्रों का रेजोल्यूशन, इंडिपेंडेंस डे रेजोल्यूशन। The world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. My Independence Day resolution is that I will never let myself litter the streets. And my resolution for this Independence Day is I will not break traffic rules. My Independence Day resolution is to actively take part in Swachh Bharat Abhiyan and to promote cleanliness in the society. My Independence Day resolution is to keep the country clean and motivate others to do the same. My resolution on this Independence Day will be that I am not going to break any kind of traffic laws. मेरा 15 अगस्त रेजोल्यूशन ये है कि मैं हर दिन अपने लिए 1 घंटा समय जरूर निकालूंगी। इससे मैं खुद को और अच्छे से जान पाऊंगी और खुद को बहुत बेहतर बना पाऊंगी। देश की प्रगति के लिए जरूरी है कि समाज में सौहार्द हो, भाईचारा हो। इसलिए स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मेरा संकल्प ये है कि मैं समाज से नफरत को कम करने में जो भी हो सकता है वो करूँ। इस बार 15 अगस्त में मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं थोड़ा टेक सेवी हो जाऊँ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखूँ, डिफरेंट तरीके से काम करूँ और अपने को और स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। My Independence Day resolution is to inspire my students more to become more independent in their thought, free from bias and become more open-minded. During this pandemic, I want to make a resolution of giving a patient hearing to all those people who need to share their grievances, sorrow, their troubles, their problems, and to tell them that they are not alone in this difficult time and that change will happen, things will improve, for change is only constant. On this Independence Day, I'm taking a resolution that I will always be fighting for my rights, be it anywhere.
I will be raising my voice if I find something which is not reasonable. आज हुई सभी प्रतियोगिताओं का परिणाम हमारे पास आ गया है। परिणाम घोषित करने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी ने इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान दिया है इसे कामयाब करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के परिणाम की ओर। नृत्य प्रतियोगिता के विजेता हैं रितिका तेंदुलकर। रितिका अपने प्रतियोगिता के विजेता हैं। पोएट्री रेसिटेशन में प्रथम पुरस्कार जाता है आयुषी वर्मा को और द्वितीय पुरस्कार जाता है सौम्या भास्कर को। जस्ट अ मिनट में प्रथम पुरस्कार जाता है रोहित गुप्ता को और द्वितीय पुरस्कार जाता है रिमझिम दुबे को। और संगीत प्रतियोगिता के विजेता हैं अनिरुद्ध दास। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जाऊंगी अमरीश सर, रविकांत स्वामी सर, अमन सर, बाला मैम, सारे फैकल्टी जिन्होंने भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में हमें सहायता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू वर्मा सर